Jai Hind. Today we are going to, I'm going to discuss about cost, costing and its methods, cost accounting and cost accountancy. First of all, you have to know about cost. What is cost? Cost क्या है? So in simple terms, cost is a amount of expenditure actually incurred during the course of manufacturing, or it will be incurred in future. If you are going to produce a product in a future, it will be notional. It will be estimated also. So cost is an amount of expenditure actually incurred, or it will be attributable in future, right? Second one is costing. What is costing? So the method of determination of cost is called costing. Any technique, any method for determining cost is called costing. Costing is a method, costing is a way, costing is a technique of determination of cost. Then what are the various methods of costing? So there are some methods of costing such as unit costing, second job costing, third batch costing, right? Batch costing, contract costing, process costing, operating costing, etc. And first of all, unit costing. It is a method of costing which imply in those industry where products are standard, products are uniform, products are homogeneous, and production is done in continuous affair. Unit costing means under this costing we will determine the cost of a product, so that it is called unit costing. Job, I think I have discussed earlier, job is a work order which is performed during the premises of factory, but it is a type of terminal order costing, because whole job is a cost unit and it is based on customer's specification. Total job is based on customer's specification, customer's preference, customer's order, and job is a type of work order. Before commencement of job, we will determine the total cost of a job, right? Second is batch costing. Batch, what is batch? So we can say batch is a group of articles. Batch है क्या? It has a unique batch number, right? So when you are going to determine the cost of a smaller छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे यूनिट्स के कॉस्ट को अगर डिटरमाइन करने के लिए हम जाते हैं, तो वी कांट डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ स्मॉलर यूनिट. छोटे छोटे पर्टिकुलर यूनिट्स को डिटरमाइन करना हमारे लिए इजियर नहीं होगा. दैट्स वाई हम उनको क्या करते हैं, ग्रुप्स में एक जगह ग्रुप कर देते हैं और देन हम उनके कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं. तो बैच इज अ ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स. उस ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स के हम टोटल कॉस्ट को निकालते हैं एंड देन आफ्टर वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑल्सो. इसका जो एग्जाम्पल है, ज्यादातर यूनिफॉर्मिटी, जहां पर ऐसे प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड बनते हैं, यूनिफॉर्म बनते हैं, लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इज द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बैच कॉस्टिंग. ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूज होगा, टॉयज इंडस्ट्रीज में यूज होगा. ठीक है, और छोटे छोटे जहां स्पेयर पार्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां भी बैच कॉस्टिंग को हम यूज कर सकते हैं. थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? Contract is also the type of specific order costing.
कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट, या ये कह सकते कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टर एंड सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्टी. कॉन्ट्रैक्टर इज एग्जीक्यूटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टी क्या हो सकता है, तो मे बी ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो इट इज अ टाइप ऑफ, it may be written or oral. So contract is a legal agreement between two parties. First one is contractor and second one is contractee. क्यों agreement कर रहे हैं, तो for cost of contract, ठीक है, for profit of contract, for other terms of contract, duration of contract. तो इस तरह के जो काम है जहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, ठीक है, वहां पर हो क्या रहा है, तो ब्रिज मेकिंग, बिल्डिंग मेकिंग, ठीक है, गॉट इट. तो वहां पे ऐसे इंडस्ट्रीज में क्यों, बिकॉज देयर आर ह्यूज कैपिटल आउटले इंगेज देयर, वहां पे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, और जो कॉन्ट्रैक्ट इट टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारा समय लेगा, आई थिंक 2 or more years. तो ऐसे वर्क्स में, ऐसे पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऐसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी में हम जिस कॉस्टिंग मेथड को अप्लाई करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग. ऐसे प्रोडक्ट जो सिंगल प्रोसेस में हमें फिनिश प्रोडक्ट में उनका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, दे टेक्स 2 or more प्रोसेसेस. ऐसे प्रोडक्ट को के कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड को यूज करते हैं. मींस ईच प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ वेल डिफाइंड प्रोसेस. हर एक प्रोसेस क्या होगा, तो वेल डिफाइंड होगा. हर एक प्रोसेस कॉस्ट का एक कॉस्ट सेंटर होगा, कॉस्ट यूनिट होगा, और अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग हम हर एक प्रोसेस पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे. वी विल डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट and of products and as well as to per unit cost of a single product. तो it is a type of standard order costing. यहाँ भी प्रोडक्ट क्या होंगे, तो प्रोडक्शन कंटिन्यूअस अफेयर्स में होगा, लगातार चलेगा, गॉट इट. प्रोडक्ट क्या होंगे, तो स्टैंडर्ड होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, स्टैंडर्ड इन कलर, स्टैंडर्ड इन साइज, यूनिफॉर्मिटी होगी, और प्रोडक्ट कभी भी, प्रोडक्शन कभी भी बंद नहीं होगा, कंटिन्यूअस ऑपरेशन में चलेगा. इट मींस दैट होगा क्या, तो प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम वेयर हाउस में ले जाएंगे, देन फिर उसको सेल आउट करेंगे, देन आफ्टर फिर हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो प्रोडक्शन कंटिन्यूअस अफेयर में चलेगा. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इंटरप्राइज जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे आर रेंडरिंग सर्विसेज. और ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कॉस्ट को असर्टन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जिस कॉस्टिंग मेथड को यूज करते हैं, उसका नाम क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. पावर जनरेशन यूनिट्स हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं. ट्रांसपोर्ट में आपका एयरवेज है, रेलवेज है, शिपवेज है, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, कैंटीन्स हैं, कॉलेजेज हैं. तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और इनके कॉस्ट को निकालने के लिए जिस मेथड को यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, ऑपरेट. दीज आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? In simple words, we can say to cost accounting. What is accounting? Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpretation of financial data. That is accounting. And अगर इसको हम बोले कि what is cost accounting, तो we can say the cost accounting is also art of recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation of cost data. अगर कोई accounting cost data पे particularly specific हो, यहाँ पर हम केवल cost से related activities को अगर record कर रहे हैं, classify कर रहे हैं, summarize कर रहे हैं, तो it means उसका नाम क्या होगा, that is cost accounting. Clear है? Got it? लास्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी. इट इज अ वाइडर टर्म. कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, तो एक वाइडर टर्म है. क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड्स कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी. इनको ये तीनों को इंक्लूड कर लेता है.
और क्यों वाइडर टर्म है? बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट मैनर। ये क्या है? तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैनर है और इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट का क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है। इसलिए हम कॉस्ट अकाउंटेंसी, क्यों सिस्टमेटिक स्टडी है? बिकॉज इसमें हम क्रम से लगातार 1 बाय 1 कॉस्ट के लिए जितने भी टर्म्स है, कॉस्ट है, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हैं, टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं लाइक मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इसको हम सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं। इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंसी अपने आप में एक सब्जेक्ट मैनर है और इट इज अ वाइडर टर्मोलॉजी। यह एक वाइडर टर्म है और इट इंक्लूड्स ऑल सच थिंग्स लाइक कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड सेकेंड टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। You all know about elements of cost. Cost has 3 prime elements. First is material, second is labor, and third is expenses. There are 3 prime elements. First is क्या है? तो materials, second one is labor, and third is expenses. First of all you have to know what is material, what is labor and what is expenses. तो अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल इज अ सब्सटेंस, मटेरियल इज अ commodity which is utilized या which is used during the course of manufacturing. किसी भी प्रोडक्शनल फंक्शन में मटेरियल क्या है? तो इट इज अ कमोडिटी, इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो डायरेक्टली यूटिलाइज होगा या इनडायरेक्टली, बट मटेरियल इज अ सब्सटेंस, मटेरियल अ कमोडिटी व्हिच इज यूज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई कमोडिटी जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए? तो प्रोडक्शनल फंक्शन में, उसको रॉ मटेरियल से फिनिश मटेरियल के कन्वर्जन में, अगर इसको कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हम यूटिलाइज करते हैं तो मेरे लिए वो क्या होगा? मटेरियल्स हो सकता है। सेकेंड इज लेबर। व्हाट इज लेबर? अगर आपसे कोई पूछे कि लेबर क्या है, तो हम कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स, लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट। लेबर क्या है? ह्यूमन एफर्ट है, मानवीय प्रयास है, इट इज अ ह्यूमन एफर्ट, ठीक है, इंगेज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश मटेरियल। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो प्रोडक्शनल फंक्शन में रॉ मटेरियल से फिनिश मटेरियल के कन्वर्जन में अगर वो इंगेज्ड है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हमारे लिए वो क्या होगा? लेबर, वो हमारे लिए लेबर है। Third is expenses. Except material and labor, all other charges, ठीक है, may be called expenses. जितने भी अदर चार्जेज होंगे उनको हम एक्सपेंस कह सकते हैं, ठीक है। अब फर्दर we can classify materials into 2 segments, labor into another 2 segments and expenses भी हम इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? तो मटेरियल 2 तरह का होगा। क्या होगा भाई? तो आप देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल्स, एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स और इनडायरेक्ट मटेरियल्स, राइट। तो मटेरियल मे बी ऑफ 2 टाइप। उसी तरह से अगर हम लेबर को देखें तो लेबर भी 2 तरह का होगा। क्या होगा? तो डायरेक्ट लेबर एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। एंड थर्ड इज एक्सपेंसेस, इट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस
and second one is indirect expenses. ठीक है, अब इनको थोड़ा सा एलाबोरेट करें. व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल? तो कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट में डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ठीक है, और जिसका आउटपुट से डायरेक्ट रिलेशन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट? इन अकॉर्डेंस ऑफ आउटपुट, ये डायरेक्टली क्या करेगा, आउटपुट के साथ फ्लक्चुएट करेगा डायरेक्टली. देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन ऑफ आउटपुट एंड डायरेक्ट मटेरियल. कैसे? तो इफ वी विल प्रोड्यूस 100 यूनिट, देन मटेरियल का रिक्वायरमेंट अगर 100 kg का होगा, तो जब हम 200 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 200 kg की. और अगर उसको आधा कर देंगे प्रोडक्शन के क्वांटिटी को, तो मटेरियल का भी जो यूज है, यूटिलाइजेशन क्या होगा? आधा हो जाएगा. और दूसरा जो इसका स्पेशलिटी है कि इसको हम किसी भी प्रोडक्ट में डायरेक्टली क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जैसे प्लास्टिक इन पेन, आप पेन में प्लास्टिक देखिए, दिखाई पड़ रहा है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है. वुड इन फर्नीचर, ठीक है, कॉटन इन गारमेंट्स या शॉर्ट, दीज आर द टाइप ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. एज वेल एज सेकेंड टाइप इज इनडायरेक्ट मटेरियल. इनका भी यूटिलाइजेशन प्रोडक्शनल फंक्शन में है. ये भी प्रोडक्ट के पार्ट है, फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट है, लेकिन इसका जो रिलेशन है उसका आउटपुट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कॉमन चार्जेज हैं. अब कैसे इनका आउटपुट? जैसे सपोज बटन्स, शर्ट में जो बटन्स लगाते हैं, आप देखिए, आप फर्नीचर में आप और भी चीजें हैं, जैसे नेल्स हैं, फेविकोल्स हैं, ये भी तो लगाते हैं. लेकिन अगर 5 किलो का अगर फेविकोल का डब्बा हमने ले लिया, खरीद लिया, तो उससे हम बहुत सारे फर्नीचर बना सकते हैं. उसका कोई मेजर नहीं है कि हम एक फर्नीचर में कितना फेविकोल यूटिलाइज कर रहे हैं. तो इट इज अ टाइप ऑफ क्लीनिंग रग्स हैं, क्लीनिंग मटेरियल्स हैं, ऑयल है, ग्रीज है. दैट्स आर द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. इनका प्रोडक्शन से हम चाहे 500 यूनिट बनाए या 1000 यूनिट बनाए, लेकिन इससे इसके क्वांटिटी में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इसमें कोई चेंज डायरेक्टली आउटपुट के साथ नहीं होगा. इसलिए इनको बोल रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल. नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. हु इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर? तो मशीनिस्ट, मशीन ऑपरेटर, ऐसा वर्कर जो डायरेक्टली प्रोडक्शनल फंक्शन में एंगेज्ड है. आप उसको देखेंगे तो मशीन ऑपरेटर, वी कैन से मशीन ऑपरेटर, मशीनिस्ट, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शनल फंक्शन में क्या हो रहा है? इंगेज्ड है. वही हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट लेबर है. बिकॉज अगर आपके पास प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ती है तो आपको मशीन ऑपरेटर क्या करने होंगे? बढ़ाने होंगे. और अगर सीजनली कोई प्रोडक्ट आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, सीजनल रिक्वायरमेंट घट गई है, तो आपको ऑपरेटर भी क्या करना होगा? कम करना होगा. तो ये भी क्या है? तो डायरेक्टली ये प्रोडक्शन के साथ फ्लक्चुएट हो रहा है. बट जो इनडायरेक्ट लेबर है, दे आर ऑल्सो लेबर, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लेबर, बट दे आर असिस्टिंग डायरेक्ट लेबर. और डायरेक्ट लेबर को क्या कर रहा है? असिस्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, लेकिन उसका प्रोडक्शन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. जैसे अपने कॉलेज को ले लीजिए, टीचर्स जो आपको क्लास ले रहे हैं वो डायरेक्ट हैं. बिकॉज जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो हमें क्लासेस की जरूरत होगी और हमें नए टीचर्स की भी जरूरत होगी. लेकिन क्या 2 आपके प्रिंसिपल होंगे? नहीं होंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड 2 होगा? नहीं होगा. लाइब्रेरियन क्या 4 हो जाएगा? नहीं होगा. वही लोग होंगे. तो दे आर असिस्टिंग, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं. उस पूरे ये ऑपरेशनल जो सिस्टम है, इस ऑपरेशन में वो काम कर रहे हैं, बट वो हमें क्या कर रहे हैं? असिस्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं. उनका आपके जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट से उनका कोई रिलेशन, देयर इज नो एनी डायरेक्ट रिलेशन है, बट दे हैव इनडायरेक्ट रिलेशन. इज इट क्लियर? तो ये हो गया इनडायरेक्ट लेबर. देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो स्पेसिफिक हैं. क्यों स्पेसिफिक है? तो उसका किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेशन है.
जैसे कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसके लिए आप एक अलग से आपको डिजाइन बनाना है। कोई प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डिजाइन बनाना है, तो कोई आर्किटेक्ट आपको बुलाना है उसके लिए, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट से वो क्या होगा, अलाइंड होगा। अगर वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें वो खर्चे मीट आउट करने होंगे, नहीं बनाएंगे तो हमें आर्किटेक्ट का पेमेंट नहीं करना होगा। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, एक्सपेंसेस हैं, वो डायरेक्ट हैं। क्यों? तो किसी पर्टिकुलर यूनिट से वो अलाइंड है, ठीक है, उनके साथ ही वो डायरेक्टली अलाइंड है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमें उसको देना होगा, नहीं होगा तो हमें नहीं देना होगा। लेकिन इनडायरेक्ट चार्जेस क्या है, तो एक कॉमन नेचर के हैं, इनका डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वी विल टेक फैक्ट्री रेंट। अगर कोई फैक्ट्री रेंट हम दे रहे हैं तो कॉमन नेचर का खर्चा है। फैक्ट्री रेंट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सभी प्रोडक्ट्स के लिए दे रहे हैं, इसका कोई आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन में हम बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका फैक्ट्री रेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो फैक्ट्री रेंट हो गया, एक्सपेंसेस ऑन सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन लेबर वेलफेयर हो गया, दीज आर इनडायरेक्ट चार्जेस। क्योंकि एक ही लेबर कई तरह के सेवरल प्रोडक्ट, जैसे हमको ले लीजिए तो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ा रहा हूं और मैं इनकम टैक्स भी पढ़ा रहा हूं, मैं एमकॉम का भी कोई क्लास ले रहा हूं। तो ये जो चार्जेज हैं जिसका किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट चार्जेस। Got it? Understood? Determination of total cost through cost sheet. How to determine total cost of a product? How to determine the per unit cost of a product? तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ स्पेसिफिक प्रोफार्मा दिया गया, फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जिनको हम यूज करेंगे और उससे हम किसी भी प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट को निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मेट है उसका क्या नाम है, कॉस्ट शीट। अब व्हाट इज कॉस्ट शीट? तो कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट क्या है? तो एक स्टेटमेंट है विच इंक्लूड्स द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड एज वेल एज पर यूनिट ऑफ कॉस्ट। तो एक इट इज ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो कॉस्ट के वेरिएट जो कंपोनेंट्स हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, उनको क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो क्या तरीका है, हाउ टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर अ प्रोडक्शनल यूनिट, कैसे करेंगे? तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ कॉलम। हम यहाँ पे कॉलम करेंगे और उसमें हम पहला जो कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर्स का होगा। क्या होगा? पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होगा। अमाउंट के दो कॉलम आप जनरेट करेंगे। एक कॉलम होगा टोटल कॉस्ट, total cost in rupees, and second is per unit cost in rupees। ठीक है, इस तरह से आप कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। बना लिया आपने, एक है पर्टिकुलर्स, दूसरी तरफ अमाउंट के दो कॉलम, टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट आपने बना लिया। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिकॉर्ड डायरेक्ट कॉस्ट। हम डायरेक्ट कॉस्ट को पहले रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट में देखिए सबसे पहले फर्स्ट ए, किसी भी प्रोडक्ट में जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है उसको दो प्राइम कंपोनेंट में हम क्लासिफाई करते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम डायरेक्ट कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, चाहे तो आप समझने के लिए, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट। हाँ, क्या क्या है? तो यू नो कॉस्ट हैज 3 प्राइम एलिमेंट। तो डायरेक्ट में क्या क्या आएगा? तो डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा क्या होगा, डायरेक्ट लेबर, एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर हमने कुछ मान लीजिए डैश कर दिया, यहां भी कर दिया और यहां कर दिया। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाउ टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट? तो इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स।
अगर टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे आउटपुट लिखा होना चाहिए, कॉस्ट शीट जब बनाएंगे तो आपको आउटपुट गिवन होगा। मान लो आउटपुट यहाँ 100 है, 100 यूनिट्स, हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 100 यूनिट्स का। तो जो भी टोटल कॉस्ट है, जैसे सपोज हमने कोई कॉस्ट लिया, मान लीजिए हम यहाँ पे 200 रुपीज, कितना हो गया 200, तो पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो 200 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आएगा 2। इज इट क्लियर? तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे मान लो कुछ होगा, हमने यहाँ क्रॉस लगा दिया, यहाँ भी क्रॉस लगा दिया और यहाँ भी क्रॉस लगा दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो द एग्रीगेशन ऑफ ऑल डायरेक्ट चार्जेस या द एग्रीगेशन ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं अगर उनको टोटल करते हैं तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। तो पहला जो आपका यहाँ पे फर्स्ट जो आप निकाल पा रहे हैं उसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, राइट। पहला जो आपका यहाँ पे डिटर्मिनेशन होगा वो आप निकाल पाएंगे, उसका नाम होगा प्राइम कॉस्ट। हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इनडायरेक्ट चार्जेस, पहले तो हमने डायरेक्ट चार्जेस को जोड़ा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। अब सेकंड इज, इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे क्या होंगे, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि द एग्रीगेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट चार्जेज इज कॉल्ड ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। First is factory overheads, second is office and administrative overheads, and third one is selling and distribution overhead. तो first of all हम किसको जोड़ेंगे, प्राइम कॉस्ट के बाद जस्ट इमीडिएटली हम जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड को जब यहां मैं जोड़ देता हूं तो यहां पे जो सेकंड हमारा आता है फाइंडिंग उसको बोलेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट फाइंडिंग है, और सेकंड फाइंडिंग होगा उसका नाम होगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन अब आप अगर आपको लिखना हो कि फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू, तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। हमने जोड़ दिया। अभी तक प्रोडक्ट को बनाने में फैक्ट्री लेवल के जितने भी खर्चे उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब सेकंड जो आप यहाँ पे जोड़ेंगे, सेकंड इज ऐड। ऐड हमने लिखा ही है, दोबारा नहीं लिखना है, हम लिख दे रहे हैं। ऐड क्या करेंगे, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट चार्जेस रिलेटेड टू ऑफिस, इट मे बी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, राइट। अगर हमने यहां पर जोड़ दिया इसको, तो देन वी विल फाइंड, हमको मिलेगा क्या, तो थर्ड हमारी फाइंडिंग होगी, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे क्या आएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फॉर्मूला क्या हुआ, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अगर वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को जोड़ दें तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सीओपी निकाल दिया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज सीओपी। इसको सीओपी से बोल सकते हैं। मान लो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक टोटल है और दूसरा पीयूसी है, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक,
हमने निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा यहाँ आ गया, इसको हमने कैरी कर लिया। अब इसके बाद हम फिर ऐड करेंगे क्या, यू नो वेरी वेल, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी नॉट ऑफिस, सेलिंग, हाँ राइट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर देना, राइट। और जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइंडिंग क्या होगा, ये हमारा फोर्थ फाइंडिंग होगा, उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। दो टर्म्स हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स या इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। अगर इसके बाद अगर कोई कॉस्ट नहीं होगा तो इसको हम टोटल कॉस्ट के नाम से भी पुकार सकते हैं या लिख सकते हैं। ये हो गया यहां तक। तो किसी भी प्रोडक्ट का हमने टोटल कॉस्ट निकाल दिया यहां पे, और इसका एज वेल एज हमने इसका क्या निकाला, पर यूनिट कॉस्ट भी निकाला। और एट ईच लेवल ऑफ इट, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के हर एक लेवल पे उसको हम हर एक कंपोनेंट का क्या कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट भी निकाल रहे हैं और पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, कॉस्ट क्या है, इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जिसमें प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे, हर एक लेवल पे हम किसी भी कॉस्ट के कंपोनेंट का टोटल कॉस्ट भी निकाल रहे हैं और पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल रहे हैं। अब यहां आने के बाद हमारा जो फाइनल स्टेप होगा उसमें हम ऐड करेंगे ऐड प्रॉफिट। जब कॉस्ट हम निकाल लेते हैं, डिटरमिन कर ले रहे हैं, डिटरमाइन हो गया, तो हमें क्या जोड़ना है, प्रॉफिट जोड़ना है। और जो ही हम इसमें प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो क्या आता है, सेल्स। सेल्स या इसमें अगर एक प्रोडक्ट का निकालते हैं तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी। या तो सेल्स होगा, अगर टोटल है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स या टोटल सेल्स। और अगर सेकंड में अगर पर यूनिट निकालना है तो उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। मींस किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा यहां आ जाएगा, उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस एसपी निकल जाएगा। और दैट इज द इंटायर प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस टू डिटरमाइन अ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और वेरियस प्रोडक्ट। अगर हम टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। आपको क्लियर है, गॉट इट।